ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ فیض احمد فیض نے 1974 میں ڈھاکہ سے واپسی پر یہ نظم لکھی تھی۔ اب 50 سال بعد فیض کی امیدیں بر آتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ 50 سال کی تلخیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے سربراہ مملکت ڈاکٹر محمد یونس کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نایاب گرم جوشی نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف محمد یونس پہلی ملاقات 26 سپٹمبر کو نیو یارک میں ہوئی تھی، جہاں UN جنرل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد شہباز شریف اور ڈاکٹر یونس کے اصرار پر ایک تقریب میں بھی گئے تھے جو بنگلہ دیش کی UN کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تھی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے لیڈر نے ایک دوسرے کے ملکوں میں دورے کی بھی دعوت دی۔ شہباز شریف محمد یونس دوسری ملاقات 19 دسمبر کو کائرو میں D8 اجلاس کے دوران ہوئی۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق دونوں میٹنگز میں 1971 کی تلخیاں بلا کر آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا۔ ہمارا ایک مرحلے میں پاکستان کا تعلق بن رہا ہے۔ میں ڈاکٹر یونس سے قاہرہ میں ملا تھا، بہت اچھی ہماری مثبت گفتگو ہوئی وہاں پر قاہرہ میں۔ بنگلہ دیش کی طرف سے ہماری طرف سے بھی بہت پازیٹیو اپنا انڈیکیٹرز ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اب فیبروری 2025 میں پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ڈھاکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ یہ 2002 میں صدر پرویز مشرف کے دورے بنگلہ دیش کے بعد پاکستان کی کسی بڑی شخصیت کا تقریباً 22 ایئرز کے بعد ایک دورہ ہوگا۔ شاید مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ دراصل گزشتہ 54 ایئرز میں اسلام آباد اور ڈھاکہ کبھی بھی پکے دوست نہیں بن سکے۔ بنگلہ دیش کا ہمیشہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رہا اور ہمیشہ پاکستان سے دوری رہی، لیکن شیخ حسینہ واجد کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد ایک میریکل ہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے دشمنوں جیسے تعلقات اب گہری دوستی میں بدل رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ریلیشنز ریسٹور ہو چکے ہیں۔ 54 ایئرز میں پہلی بار نومبر 2024 میں پاکستان کا ایک کارگو بحری جہاز چٹاگانگ پورٹ پر اس نے اینکر کیا، جبکہ دوسرا کارگو شپ دسمبر 2024 میں بنگلہ دیش پہنچا۔ اس سے پہلے دونوں کنٹریز کے درمیان ٹریڈنگ سنگاپور یا کولمبو کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگست 2022 میں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے پاکستان نیوی کے جہاز PNS تیمور کو چٹاگانگ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہندوستان ٹائمز نے اس واقعے کی شہ سرخی لگائی تھی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اب بنگلہ دیش نے پاکستان سے آنے والی تمام ایکسپورٹس کی 100% فزیکل انسپیکشن کو لازمی جو اس کا قانون تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پاکستانی پیسنجرز کی اسکروٹنی کے لیے قائم کی گئی خصوصی سیکیورٹی ڈیسک بھی ختم ہو گئی۔ یہ ریسٹرکشنز بھی حسینہ واجد کی حکومت نے پاکستانیوں پر عائد کی تھی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں بنگلہ دیش کے ڈیپٹی ہائی کمشنر محبوب العالم نے ایک تقریب میں دونوں ملکوں کے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے لیے ایک ٹریڈ ایگزیبیشن کا بھی اعلان کیا۔ جنوری 2025 میں ڈھاکہ میں ہونے والی ٹریڈ ایگزیبیشن میں شرکت کے لیے پاکستان کے تاجر جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان نے بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے ایک نئی ویزا پالیسی دے دی ہے اور اس کے تحت ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن بنگلہ دیشی سٹیزنز کو مفت بزنس اور وزٹ ویزا لگا کے دے گا۔ ویزا پروسیسنگ آن لائن ہوگی اور 48 آورز کے اندر ویزا ایشو ہو جایا کرے گا۔ اب تک بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا۔ دونوں کی بائی لیٹرل ٹریڈ تقریباً $16 بلین تھی، جس میں $13 بلین کی انڈین ایکسپورٹس ہوتی تھی
जबकि पाकिस्तान की बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स कभी भी $839 मिलियन से आगे नहीं जा सकी। लेकिन अब बांग्लादेश के अवाम के जज्बात इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के हिमायत में होने की वजह से ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कही जा रही है कि इंडिया की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी और पाकिस्तान की बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। न्यूयॉर्क में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की कि हमने तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने, IT, केमिकल, लेदर और सर्जिकल आलात और दीगर शोबों में कोऑपरेशन पर बहुत उम्दा बातचीत की है। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन मीडिया ने पाक बांग्लादेश दो तरफा बदलते ताल्लुकात पर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। मिसाल के तौर पर इंडियन न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक खबर में ये कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्टिलरी और एम्यूनिशन से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट की एक बड़ी कंसाइनमेंट मिलने वाली है, जिसमें टैंक, एम्यूनिशन और हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स भी शामिल होंगे। हमें नहीं मालूम कि खबर सही है या गलत है। हमें याद है 80 की दहाई में पाक बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी डीप था। बांग्लादेश के सदर जनरल ज़ियाउर रहमान और सदर जनरल मोहम्मद हुसैन इरशाद के सदर जनरल ज़ियाउल हक से बहुत ही करीबी और फ्रेंडली ताल्लुकात थे। उस ज़माने में दोनों मुल्क सार्क में भी बहुत एक्टिव थे। 2002 में पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आई थी जब वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की दावत पर सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था। वो शोहदा की यादगार पर गए थे। 1971 के वाक़यात पर अफसोस का इजहार भी किया था और अच्छी डीप फ्रेंडशिप के लिए माजी को दफन करने पर जोर दिया था। ये दौरा पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं था, मगर अफसोस भारत नवाज अवामी लीग और प्रो इंडियन हसीना वाजिद ने पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया। सियासत का मैदान हो या क्रिकेट का, शेख हसीना वाजिद के रवैये में हर मौके पर नफरत दिखी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अब एक बार फिर सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हुई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है और नई नई प्रपोजल सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर ढाका यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मान ने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर एग्रीमेंट की एक प्रपोजल दे दी है। उनका कहना है कि खित्ते में इंडियन इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए इस्लामाबाद ही ढाका का सबसे काबिल एतमाद एलाय हो सकता है। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होनी चाहिए कि हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ तहरीकों को जन्म देने वाली बांग्लादेश की सबसे बड़ी ढाका यूनिवर्सिटी के दरवाजे अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खुल गए हैं। शेख हसीना की हुकूमत ने 2015 में ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान 1971 के वाक़यात पर माफ़ी मांगे। लेकिन अब बांग्लादेश के नौजवान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को कबूल करने को तैयार नहीं। शेख हसीना के बेदखली के बाद, यानी कि उनके फरार के बाद, बांग्लादेश से इंडिया पहुंचने के बाद नौजवानों ने शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट और मूर्तियों को तबाह कर दिया है। 1971 की जंग की अलामतों को तहस नहस कर दिया है। जबकि अब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के नतीजे में बनने वाली डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ने ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दाखिले देने की इजाज़त भी दे दी है। ये भी हकीकत है कि 1947 की आज़ादी के बाद 24 साल तक ये मुल्क और ये लोग पाकिस्तान का हिस्सा थे। अब भी अनगिनत बांग्लादेशियों के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। हैरत की बात तो ये भी है कि 1971 के बाद पहली बार 11 सितंबर 2024 को ढाका नेशनल प्रेस क्लब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई है। शेख हसीना वाजिद ने तो पाकिस्तान से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया था, हत्ता कि शेख हसीना वाजिद ने 4 मुसलसल इलेक्शन पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान एनिमी कार्ड दिखाकर जीते। पाकिस्तानी
হানাদার বাহিনীদের দোষও বা পাকিস্তানি দালাল চক্র যারা অন্তরে অন্তরে তখনও পাকিস্তান প্রেমে ভোগে, তাদের এই চক্রান্ত কখনো এই মাটিতে সফল হতে পারে না। अब फॉरेन अफेयर्स के माहिरीन चाहे वो बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो या भारत में हो, वो मानते हैं कि बांग्लादेश में पॉपुलर रेवोल्यूशन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, ट्रेड रिलेशंस हो, बिजनेस रिलेशंस हो या एजुकेशन रिलेशंस हो, कल्चरल रिलेशंस हो, स्पोर्ट्स हो, इन सब की बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश बेहतर ताल्लुकात आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका सबूत पहली बार बांग्लादेशी फिल्म तूफान की पाकिस्तान के सिनेमा घरों में नुमाइश भी हुई है। डेली टाइम्स के मुताबिक 43 पाकिस्तानी सिनेमा घरों में बैक वक्त तूफान नुमाइश की गई। अगस्त और सितंबर 2024 में पाकिस्तानी ग्राउंड्स में बंगाल टाइगर्स और ग्रीन शर्ट्स के दरमियान क्रिकेट के जबरदस्त मैचेस से शायकीन खूब महसूस हुए थे। पाकिस्तान के बहुत ही वर्ल्ड फेम्ड गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने 21 दिसंबर 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी में एक चैरिटी कॉन्सर्ट के लिए परफॉर्म किया और मीरपुर के शेर बंगाल स्टेडियम में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इफ्तिताई तकरीब में भी शरीक हुए। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक राहत फ़तेह अली खान ने बांग्ला ज़बान का गाना सुनाकर शायकीन को हैरान कर दिया। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के रॉक बैंड जल ने ढाका एरेना में जबरदस्त परफॉर्म किया। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। दरअसल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को हमेशा इंडिया की नज़रों से देखा और बायलैटरल रिलेशंस को 1971 की तारीख के इर्द गिर्द ही घुमाती रही। माना कि सुकूत ढाका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का नैरेटिव मुख्तलिफ है, मगर दोनों मुल्कों के 42 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि दोस्ताना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश माजी से निकल रहे हैं और एक बार फिर एक दूसरे से करीब तर आ रहे हैं।